नमस्कार, मैं हूं स्वाति कौशिक और आज हम आ गए हैं फरीदाबाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्यालय में। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना टैलेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आज यहां देश के हर कोने से हर उम्र का हुनर मौजूद है, तो वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आपको सीधा ले चलते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं। मैम, यूट्यूब पर आध्यात्मिक प्रवचन और वीडियो बनाने के लिए, आप अपलोड करने के लिए यात्रा जैसे शुरू हुई आपकी, तो आपको किस बात ने प्रेरित किया? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। द जर्नी ऑफ माइन स्टार्टेड इन 2020 May because ISKCON Mangaluru has asked me to take the classes on Bhagavad Gita. Later on, inspired by my sessions, the members of those courses have asked me to continue the satsang. And I think this is the first Sanatana Dharmam Pravachanalu, our channel, is the first channel which conducts every day live sessions at 6:30. So, मैं हर रोज़ शाम को 6:30 बजे YouTube live sessions लेती हूँ और MS Teams में भी sessions लेती हूँ. And the entire team of mine, the members of my Sanatana Dharma Pravachanalu Satsang members, I should really give the credit to them. And of course, my humble pranam to my parents and Guru Adi Shankaracharya. Hi. Hello, ma'am. Your good name? Mukul. Mukul, what inspired you to pursue a project on Kuntipal ground control station at such a young age? I'm actually, right from my childhood, I had been into robotics and these kind of projects. But my aim was always to, make a project, incubate it and give it to the defense forces of India. So I thought the one that we are lacking is a ground control station. And ground control stations are not made in India. It's been completely imported into India. And the ground control stations existing are only capable of controlling only one device at a time. But I have made a ground control station which is capable of controlling 5 devices at a time and is completely manufactured and assembled in India. It satisfies all the measures of the Atmanirbhar and the Make in India initiatives. Mukul, what were some challenges you faced? Can you walk us through that? Yes, the main challenges that I faced was many of the products or controllers were not available in India. They had to be imported, but I made sure that I manufactured all of them, we outsourced it and we created it. What inspired you to dive into research in the field of pure number? Pure number, because I wanted to do research work in mathematics. I chose pure numbers only because this is the only field of mathematics where others have no their hands. So, can you please provide some insight, like some memorable moments, any ideas or something? So many. Because before my retirement, I found 9 has some specific properties. 9 with the number 9 only, I started this research work in pure numbers. 9 is the fundamental helping hand to start with this 9, because 9 into, I'm just telling you, 9 into 2 is 18. 18. And you add 1 and 8. It's 9? It's 9 only. Oh, yeah. 9 into 3, 27. Add 2 and 7. It's 9? 9 only. Like that, 9 into 8 you add, multiply, 72. 72. 7 plus 2? Is 9? 9. This type of property fascinated me to do. Hello, ma'am. Hello. Hello, sir. Hello. भवि को इतनी कम उम्र में कई भाषाओं में नर्सरी कविताएं सुनाने के लिए किसने प्रेरित किया? एक्चुअली जब भवि पैदा हुई थी तभी से कुछ 1-2 महीने के बाद से ही हमें उसमें बहुत अलग तरीके के चेंजेस, बहुत ही डिफरेंट, जो दूसरे बच्चों से, सेम एज के दूसरे बच्चों से बहुत अलग लगने लगे. जैसे 2 महीने में उसने टर्न ले लिया, 6-7 महीने में उसने काफ़ी चीज़ें रिकॉग्नाइज करी, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें. क्या इस रिकॉर्ड का प्रयास की तैयारी के दौरान भाभी को किन्हीं चुनौतियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? भवि को तो नहीं, बट हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बिकॉज हमने बहुत, मैं सोचती हूँ शायद मे बी मोर देन 50-60 टाइम्स वी ट्राइड
एंड बिकॉज ये कैसे चलते फिरते रैंडमली बोल देती है, लेकिन वो रिकॉर्ड क्रिएट करना, लाइक स्टॉप वॉच लगाना, रिकॉर्ड क्रिएट करना, 2 मिनट 26 सेकेंड के अंदर 7 लैंग्वेज में कविता फट बोल देना, वो थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग था। इसके लिए तो कुछ भी, आज भी कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, तो ये तो चलते फिरते बोल देती है। एन को इतनी कम उम्र में कविताएं सुनाने के लिए किसने प्रेरित किया? मम्मी ने इनका। मम्मी ने। क्या आप इस उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंचने के लिए इनकी तैयारी प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पिछले 1 ईयर से हम ट्राई कर रहे हैं। तो स्कूल में भी एक्टिव है, स्कूल असेंबलीज में भी कई सारे मतलब रेगुलर बेसिस में वहाँ पे ये गाता है, राइम्स वगैरह सुनाता है। तो उसी से हम सोचा कि कुछ क्यों ना हम कुछ अचीवमेंट के तरफ से आगे बढ़े। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब एक ये इतना बड़ा मंच है जो आपको अपनी पहचान देता है, तो आपको इसके लिए किसने प्रेरित किया और आपको कैसे पता चला कि मतलब बच्चे को ये रिकॉर्ड ये बना पाएगी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया बुक ऑफ बहुत अच्छा है, ये बच्चे के लिए ये एकदम बेस है, मैं ये मानता हूँ। आगे बढ़ने के लिए, आगे और जाके कुछ करने के लिए एक बेसमेंट है। तो इसमें एक अप्रोच ये मिलती है कि इंकरेजमेंट है। तो और नेक्स्ट ये गूगल में भी कई सारे हमारी दोस्त के जो अचीवमेंट हम देखते हैं तो इम्प्रेस होके क्यों ना हम भी अपना बच्चे को किया जाए। तो ये सभी बच्चे कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी कर सकती है करके हमारा जो ये था उसको हम आगे बढ़ाए। सर आपका शुभ नाम? आनंद प्रकाश शर्मा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आपको हिंदी में अधिकतम संख्या में कविताएं लिखने की चुनौती लेने के लिए किसने प्रेरित किया सर? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने माना कि 1000 या इससे ऊपर कविताएं लिखी गई हों इतिहास में, तो लिखी बहुत गई हैं, मगर मैंने ये माना कि अगर हम इन्हें एक ही ISBN बुक में एक ही मर्तबा अगर हम निकालते, छपवाते और अगर किसी रिकॉर्ड में जाती हैं तो मेरे को रिकॉर्ड बुक के लिए अपने आप को चुनौती देना लगा। सर जिस तरह से आपने 1050 कविताएं लिखने की उपलब्धि हासिल की है, तो आपको इस पे मतलब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सच पूछो तो बहुत ही गौरव महसूस होता है और आप लोगों से मिलके वो दुगना हो जाता है। इंडिया बुक रिकॉर्ड अगर हमें उसमें आमंत्रित करता है और इस तरीके से इंटरव्यूज होते हैं और सबसे मुलाकातें होती हैं और बहुत से लोगों से भी, तो ये तो लगता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है और ये गौरव का पल होता है। इसको मैं शब्द कह दूँ मगर शब्द से बड़ी चीज़ है, मगर भावनाएं तो कहेंगे ना, व्यक्त तो करनी होगी। तो आपके साथ ये भावना साझा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी कम उम्र में विभिन्न वस्तुओं और अवधारणाओं को सीखने और पहचानने में कियान की रुचि कैसे जगी? उसका छोटा से बच्चा उम्र से उसका रुचि है कि कोई कुछ बोलेगा तो तुरंत पकड़ लेगा। पहले ये बताइए कि कियान ने किस चीज़ में रिकॉर्ड बनाया ताकि हमारे दर्शकों को पता चले? कियान 26 फेमस पर्सन का नाम बोल सकते हैं, 50 पोइट्री बोल देगा और आपका वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स। आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मतलब यहाँ आके कैसा मतलब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। अच्छा, किसने बताया आपको कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचना है? कैसे आपके दिमाग में आया कि बच्चे के टैलेंट को हम आगे कैसे उभारें? कहाँ से आपको पता चला इसके बारे में? इसका टैलेंट देख के हम सोचे कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक बार कोशिश करते हैं, उसके बाद देखे कि हाँ सिलेक्ट हुआ है। कि बच्चे को अपनी खुद की पहचान आपने इतनी कम उम्र में दिला दी, लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो आप कैसा फील करते हैं बीइंग अ पेरेंट्स? बहुत अच्छा फीलिंग है। So you can introduce yourself. I'm K. Divyadarshan and I'm from Chennai, Tamil Nadu. My record is that I am the youngest author to get copyright for my unpublished bilingual book. इतनी कम उम्र में आपको मतलब आपने आपकी जो किताब लिखी हुई है विजडम फ्रॉम यंग वन लिखने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? I see Elon Musk as my role model and I have learned that a boy named Jack Sweeney uses a tracker to track Elon Musk's jet. That was the inspiration for my first story. Then the rest of the 2 stories were just other bits of inspiration. Like can you share some insight into the themes or message conveyed in your book? My book is about greediness. I want to teach children that that greediness is a bad emotion.
over addiction on something or some person can lead to bad consequences. So can you introduce yourself? Yeah, sure. So my name is Ketan Abhonkar, and I come from Pune, Maharashtra, and I'm a mechanical engineer by profession and working in a CAD software development company in Pune. And the record I hold is the fastest to complete a half marathon while juggling 3 balls. So how are you feeling? I'm feeling great, and thanks to IBR for giving this opportunity to be here in the premises and share this with the fellow record holders. So yeah, feeling great. आप अपनी रिकॉर्ड सेटिंग उपलब्धि के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? Yeah, so I mean, everyone should do something or the other for their health. We know that health is wealth. So it may not be running. You can maybe do some yoga or Surya Namaskars or running and any sport you can play. But just give some time to you. And yes, I am here to promote juggling also. And that's where I think that's me, by the way, juggling. So yeah, so maybe I think there is very less awareness of juggling in India. I mean, you hardly see, but then outside I see that there are many people who are enjoying this sport, and so why can't we in India? सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम हिम्मत सिंह राठौड़ फ्रॉम जयपुर राजस्थान। 86,400 सीढ़ियां चढ़ने और उतरने की ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया? प्रेरित तो आर्मी में थे तो वहीं से ही प्रेरित थे हम तो, और उसके अलावा फिर हार्ड मेहनत करते हैं तो सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। तो उसी हिसाब से हमने फिर इसके लिए मैंने 10 लाख सीढ़ियाँ चढ़ी हैं ये रिकॉर्ड बनाने के लिए, और 86,400 सीढ़ी लगभग 19 घंटे और 46 मिनट 16 सेकंड में पूरी कर दी हमने। तो आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिनको ये मंच, जिन्हें नहीं पता है कि कैसे पहुंचना है इस मंच तक? इंडिया रिकॉर्ड्स के लिए आइए आप, पहले तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। सबसे फर्स्ट फैसली तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि हर आदमी को रिकॉर्ड नहीं बना पाता, और रिकॉर्ड बनाना कोई आसान भी नहीं है और आसान खेल भी नहीं है, ठीक है। और आप बना भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि आप नहीं बना, आप जो चाहें आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर हनुमान जी जैसी शक्तियाँ मौजूद है। सिर्फ मेरा जैसा एक इंसान चाहिए जो आपको जामवंत जी बन के आपकी शक्तियाँ याद दिलाए और आपकी वो शक्तियाँ बाहर निकाले, ठीक है। आपके अंदर हनुमान जी जैसी शक्तियाँ है, माँ भवानी की शक्ति आपके अंदर मौजूद है, सब शक्ति आपके अंदर है, लेकिन हम कर नहीं पाते। जिसके सपनों में जान होती है उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं होता। So I am Dr. Nipanka. I am from Guwahati, Assam. I have been working in the field of sustainability for more than 10 years now, trying to create an impact and also build solutions which are profitable for the environment and also for the mother nature. So yeah. So Mr. Nipank, any change before you achieve this record or after? Yes, I mean this achievement is a big one for me because it will push me to get more insights on how things work around, and of course it will give me a motivation to do more for the environment. So yeah, I think this is a really big achievement for me. हाय जयेश, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इतना इंस्पायर किया कि आपने सभी देशों के राष्ट्रगान को इतना इजीली कह दें, कि आप इतना मेमोरेबल कह लें कि आपने याद ही कर लिया? एक बार मैं अपनी जो सोसाइटी है वहाँ पे इन्हीं नेशनल एंथम में से किसी एक नेशनल एंथम को हम कर रहा था, तो फिर उसके बाद उन्होंने अराउंड 30 कंट्रीज़ के नेशनल एंथम की ट्यून प्ले की और मैंने उन सभी को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब आपका नाम आया और आपने देखा कि यार मैंने इतने रिकॉर्ड बना दिया, तो उससे पहले आपके लाइफ में और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? ये चेंजेस तो है क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ हम लोग बहुत मैं लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। अभी उन्हीं के साथ मैं वियतनाम गया था, वहाँ पे मैंने वियतनाम का नेशनल एंथम परफॉर्म किया था, एंड 2022 में सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ वहाँ पे भी वियतनाम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके सामने मैंने वियतनाम का नेशनल एंथम परफॉर्म किया था। What inspired you to undertake the challenge of recalling the first 100
decimal places of root 5. 3 or 4 months ago, I saw a YouTube video where a person recited the first 100 decimal places of pi. Pi is basically 22 pi 7 or 3.14 and so on. So that's where I was like really inspired, seeing how he memorized such an amazing set of numbers using various pictorial forms, and that really inspired me to do something. Any changes before achieving record or after achieving record? I'm able to score good marks in exams now because my memorization increased. So I do believe that my memorization really was able to increase after the record. So that is one very, very good thing I was able to take from this particular record. Yeah. Hi, Kevin. Hi, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. So, Kevin, how you are feeling right now? You have achieved such a great record. So happy. You are happy? I'm happy for you too. Good morning, ma'am. Yeah, I'm feeling very proud of him. He achieved many more things like this. We are so happy and proud of him, ma'am. Can you describe the preparation process of Kevin underwent to achieve the remarkable feat? Yeah, he recited 1 to 30 tables simultaneously, writing 45 general knowledge questions. First, it was a huge challenge. It is very difficult to concentrate both things at the same time, but he achieved it. We are so happy. And how do you get to know about India Book of Records? We see in Insta page and the Twitter page, so I want to apply this. आपने इतने कम समय में कई वाद्य यंत्र बजाने की चुनौती के लिए खुद को कैसे तैयार किया? वेल मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, मैं सेक्रेट हार्ट स्कूल चंडीगढ़ में हूँ, मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ और मेरा एक फ्लो रहा है म्यूज़िक में, बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं। तो पिछले लास्ट 15 ईयर से मेरा म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा पैशन रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मोस्टली हर इंस्ट्रूमेंट को फॉलो अप किया है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा ना हो जो मुझे ना आता हो। आपको इस रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि का प्रयास करने के लिए किसने प्रेरित किया? सबसे पहले तो पेरेंट्स फॉर श्योर, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मेरा स्कूल, मेरे प्रिंसिपल, मेरे सिस्टर आरती प्रिंसिपल, वो बहुत इंकरेज करते हैं सारी फैकल्टी को। मेरी सारी फैकल्टी इतनी अच्छी है, मेरे सारे टीचर सीनियर वो हमेशा इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इवन वो हमसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन एक टीचर जब आप बनते हैं तो आप सिखाते भी हैं और आप सीखते भी हैं, तो कई बार आपको बच्चे भी इंस्पायर कर जाते हैं। तो ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरा स्कूल सेक्रेट हार्ट और मेरी प्रिंसिपल मैम को है। सर, हाउ डिड यू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द लॉजिस्टिक्स फॉर सच एन एक्सटेंसिव एक्सपीडिशन इंक्लूडिंग द रूट प्लानिंग एंड व्हीकल मेंटेनेंस? Actually, this little bit long time I searched in the internet, then the Google Map also. It's very hard. It take months actually, 6 months, 8 months. I back the Google Earth also, the mapping. Then each route I did not repeat the route. That's the main thing. Same route. Once I go, I will not come back that route. So I choose another route to come back. Even it's not crossing also. So what inspires you and how did you get to know about the India Book of Records? Actually, first I know only this India Book of Record before Guinness World Record or anything. 4 years ago, before just Corona, I am calling, I am mailing, there need no report. I said I came direct to the office in India Book of Record. So then I am waiting, then finish everything. The situation will be everything okay. I plan already. Then only I inform them. So I am going to do this one. Hello, Mr. Michael. Hello, ma'am. A small introduction about your record, please. Yeah, so I have developed the smallest electronic circuit for counting applications. So actually what I have developed is an memristive counter with least number of memristors. Previous record they have developed memristor counter, but they have implemented with 16 memristors. I have implemented the counter circuit with 1 memristor alone. This was possible because the engineering was done in the signal instead of doing the engineering in the circuit. Any message you want to convey? Like
research point of view, I would encourage many youngsters to pursue research because that will take our nation to great heights. Thank you. Nice talking to you. Thank you, sir. Good morning, Priya ji. Good morning. Welcome to IBR. As you know, आज हम लोगों का 7th कॉन्वोकेशन है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने रिकॉर्ड जो बनाया है वो किस चीज़ का रिकॉर्ड बनाया है? ओके मैम, ये लॉन्गेस्ट मेहंदी डिज़ाइन का रिकॉर्ड है और इसके पहले भी IBR में सेम रिकॉर्ड एक था, तो आई बीटेड दैट रिकॉर्ड. दैट वाज 19 फीट और समथिंग सेंटीमीटर, समथिंग इंचेस वाज देयर. बहुत सारी, मैंने देखा बहुत सारी कैटेगरीज आप लोगों ने लॉन्च करके रखी है, तो बहुत अच्छा है. एंड ट्राई करते करते कोई भी इसको मतलब अचीव कर सकता है, सो इट्स अ गुड थिंग. एटलीस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, दैट इज अ बेस्ट थिंग. You can keep on trying for other records also, Exactly, I'll try. Yes, you have made a brilliant record. Appreciated. You are appreciated for riding a motorcycle. So, what was the inspiration behind that? Tell me something about that thing. देखो, इंस्पिरेशंस का तो ऐसा है ना, तो मुझे एज ए इंस्पिरेशन लोगों के लिए कुछ करना था, तो इंस्पिरेशन की इसमें बात नहीं, मतलब एज अ मेरा कोई एक मॉडल नहीं, सिर्फ मुझे करना था एज ए इंस्पिरेशन के लिए ये करना था. सो आई मेड दैट रिकॉर्ड. यस. यश, ये बताएं, जब आपको ये रिकॉर्ड मिला या ये अचीवमेंट मिला, तो आपके आसपास वाले लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? जैसे आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके फ्रेंड्स के ऊपर, आपके रिलेटिव्स के ऊपर, कैसा उन लोगों ने, उनका क्या रिस्पॉन्स था इस चीज़ के लिए? तो बेसिकली कोई भी अगर सोचता है तो नेम से ही मतलब आगे के इमेजिनेशन लोग कर देते हैं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब क्या होगा, कितना मतलब कैसा होगा, लोग एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए. सो ये सभी को पता होने के बाद सभी को एक प्राउड फील हो रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँचा, कुछ रिकॉर्ड बनाया, इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा सा चालू है, तो सब लोग प्राउड फील कर रहे थे, फ्रेंड्स एंड ऑल. यस. कैसा लग रहा है आपको ये रिकॉर्ड अचीव करके, जो एज एन अचीवर? बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके. तो आपने ये रिकॉर्ड क्या सोच के बनाया था? मैंने इसलिए बनाया था कि मुझे आगे और अपना देश का नाम रोशन करना है. अभी मैं दौड़ूंगा 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 12,000 किलोमीटर दौड़ूंगा. अच्छा. तो आपने ये जो जर्नी थी, ये जो आपने ये सोचा और फिर कैसे इसको किया, आपने क्या मतलब प्लान किया इस चीज़ के लिए? पहले तो जैसे मैं बढ़ती देखता था, उसके बाद स्पोर्ट में गया था, तो फिर उसके बाद मैं जैसे देखता था गूगल पे, इस पे सर्च करके, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी एक रिकॉर्ड बनाऊं. ओके. Good morning all. My name is Sinjan. I am from Karnataka. I attempted leg rotation 11 times in Chakrasana pose in 1 minute in India Book of Record. What was the inspiration behind this? My inspiration is mother and father. Okay. She only told you to do all these things because Chakrasana is very difficult pose for everybody. So you at the age of 10, you made this record. So how did you do it? मतलब कैसे? How did you make it possible? Every day I will practice. Okay. आपके फ्रेंड्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा जैसे उनको पता चला कि you have done this achievement in this thing, you have made the record? What was the impact on your friends, on your teacher? They support me every day. They supported you. Sir, as a parent of Inaya, what record she has made, because she is unable to speak, so you can tell us. Sure. First of all, I would like to thank IBR and her mother and all the record holders. She had made a record of saying all alphabets, and she identifies alphabets in the books. Where is A, and if you ask randomly, say, like where is C, D, random words you will ask, she will identify and tell you the name of the alphabets and pronounce them as well, and also English alphabets as well as the Hindi Varnamala. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका स्वागत है, और आप ये बताएं कि आपने ये रिकॉर्ड क्या बनाया और आपको इस चीज़ की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली?
मैंने ये कोरोना काल के टाइम में मोबाइल में बिजी रहता था मैं। ओके। तो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि अब इस उम्र में भजन करो कुछ। तो मैंने पहले तो माला शुरू की। अच्छा। मेरा मन नहीं लगा माला में। फिर मैंने कहा कुछ लिख के करते हैं। मैंने एक बुक लिखी। अच्छा। राम नाम की। अच्छा। जी हाँ। फिर बुक लिखते लिखते मैंने कहा कुछ अलग किया जाए। राम राम तो बहुत लोग लिख रहे हैं। राइट। मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। तो फिर मैंने ये राम राम इस तरीके से, ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर है फोटो। राम से ही, राम के नाम से ही इन्होंने बनाया हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपके ये दिमाग में कैसे आया कि आपको ये वाली चीज़ करनी है कि आपने फ्री हेलमेट देनी है लोगों को? मतलब आपको रोड सेफ्टी को लेके या पीपल की सेफ्टी को लेके आपको ऐसा कुछ एहसास हुआ था कि आपको ऐसा कुछ वो करना चाहिए? मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैं जनरली इंश्योरेंस का काम करता हूँ। और महीने में कम से कम 10-20 तो कॉल आती है मेरे को कि वो मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे दिमाग में एक ये संकल्प आया कि इंश्योरेंस निकालते हैं तो अपन साथ में हेलमेट फ्री दे देंगे। जो भी कमीशन आता है 100-200 रुपये, हमारे को 50 रुपये, उसमें से मैं हेलमेट फ्री देना चाह रहा था। तो उस हिसाब से हेलमेट दे दिया मैंने। यहाँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आके आपको कैसा लग रहा है? I'm just feeling like very proud of myself and like even very grateful to India Book of Records. Like just feeling very proud and like yeah. Why was the limit of 10 minutes only and why was the limit of 65 reels only? It was not, I did not prepare a limit or something. It was like I tried to make how many I could make. Okay. So I tried to make a lot of reels and I did not decide the time. I tried like how much less time I could do and the last time was 9 minutes 57 seconds. At the first time when I tried this, I made it in 10 minutes 17 seconds. Okay. So I tried to reduce the seconds and make it is more working like and more difficult for the other persons. Like I'm going to try to break my own record. Okay. That is what my thing is. Yes. And I did not exactly decided the limit. That was like how much less I can do, how much hard work I could do and do this. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. Good. Can you tell me what record have you made? 100 countries, capital name, do you know? So you can tell us. India, New Delhi, China, Beijing, Pakistan, Islamabad, Turkey, Ankara, Asia, Moscow, Canada, Ottawa, USA, Vietnam, South Africa, Cape Town, Germany, Berlin, Dhaka, Telangana, Colombo, Malaysia, Kuala Nepal, Kathmandu, Bhutan, Ningbo, Japan, Tokyo, France, Paris, Kerala, Italy, Europe, Singapore, Indonesia, Jakarta, Greece, Athens, Russia, Vienna, New Zealand, Australia, Canada, Romania, Bucharest, Serbia, Belgrade, Finland, Helsinki, Sirmia, Damascus, Taiwan, Taipei, Tunisia, Tunis, Ukraine, Zimbabwe, Harare. Wow, wonderful, wonderful.